Namaste Gurukulians. Hope you all are fit and fine at your home. So today again we are going to start our next chapter. The chapter name is Metals and Non-Metals. Chapter 3, Metals and Non-Metals. You might have learnt in your 9th class about the various types of elements, and moreover we know that the material all around us are made up of chemical elements, and those chemical elements are broadly classified on the basis of their similarities and on their difference. So here we are going to discuss about the types of elements, like about metals and non-metals. You already have learnt in your 9th class that chemical compounds are classified into the like metals, non-metals and the metalloids. Such type of elements are present in our periodic table. So at present 118 elements are known, and out of those 118 elements we know that mostly periodic table is made up of metals. That's why we can imagine that our periodic table is mostly made up of by the metal, because 80% metals are present in our periodic table. Okay, so here we are going to discuss about the main features and properties of metals and non-metals. So first of all we will discuss the physical properties of metals and non-metals, and moreover you can say that what are the main difference between the physical and chemical properties of the metals and non-metals. So in this very lecture we are going to discuss about the physical properties of metals and non-metals. Okay, so let's start one by one. We have to discuss metals and non-metals. See, so our first point is the chemical compound which have 1, 2, 3 electron in its outermost cell. Except hydrogen, because hydrogen is a non-metal. See, here we have written a point, that means the chemical compound or the elements which have 1, 2, 3 electrons in its outermost shell. Okay, so see how you can identify. Suppose we have sodium. Atomic number of sodium is 11. Okay, and if we are going to distribute the electron in KLMN shell, K, L, M and N, we know that 2, 8, 8, 8 criteria is there. So how you have to distribute the electron? 2, 8 and 1. So how many electrons present in the outermost shell? That means जो बाहर वाली बिल्कुल outermost हमारी cell है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन present हैं? 1 electron, और 1 electron is present. That means sodium is a metal. Okay, and same point we have written means which have 1, 2, 3 electrons. अगर हमारी outermost cell में आपको पता चले कि इलेक्ट्रॉन 1 है, if here 2 is there, like if we talk about the magnesium, atomic number of magnesium is 12, and if we distribute the electrons, how we will distribute? 2, 8, 2. Now see, in outermost cell 2 is there, that means magnesium is also metal. If we talk about aluminium, atomic number is 13, 2, 8, 3. Now check the outermost shell of all these 3 elements. We know in case of sodium 1 electron, in case of magnesium 2 electron, in case of aluminium 3 electron. Means in all these elements in outermost shell 1, 2, 3 electrons are present. That means these all are known as metals. तो हमें सिंपली इस पॉइंट में क्या देखना है कि कोई भी एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमें पता चले कि जो आउटर मोस्ट हमारी सेल है उसके अंदर अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 दिख रहा है या 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। मोरओवर हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं
कि अगर उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की है, दैट मीन्स वो क्या है, हमारे मेटल्स में काउंट होंगे। ओके, सो इट वाज द फर्स्ट पॉइंट। मीन्स जिस भी एलिमेंट में आपको दिखे कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 1, 2 या फिर 3 इनमें से कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन मिले, दैट मीन्स द एलिमेंट इज काउंटेड एज अ मेटल। सो व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? द एलिमेंट्स विच हैव 4, 5, 6 and 7 electron in its outermost shell is नॉन मेटल। वो क्या होगी, हमारी नॉन मेटल होगी। एक्सेप्शन क्या है? नो नीड टू राइट हियर एक्सेप्शन, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द नोबल गैसेज, स्टिल हमें पता ही नहीं है नोबल गैस इज काउंटेड एज अ मेटल और नॉन मेटल, बिकॉज दैट इज द सेपरेट थिंग। उसको हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर भी क्या है, एक सेपरेट पोर्शन में ही रखा हुआ है, बिकॉज प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट। ओके, सो सी हेयर, जिसकी आउटरमोस्ट सेल में आपको क्या मिले, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दोज एलिमेंट्स आर नोन एज द नॉन मेटल। लेट वी राइट सम एग्जाम्पल। If we talk about oxygen, oxygen atomic number is 8. If we have to distribute the electron 2 and 6, so now check here, लास्ट वाली सेल में, आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड इट इज कंसीडरिंग अ रूल ऑल्सो। ओके, जो हमने लिखा है, हमारी जो कंडीशन है, इट इज फॉलोइंग दैट कंडीशन ऑल्सो। दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स आ एलिमेंट इज काउंटिंग एज अ नॉन मेटल। सेम इफ वी टॉक अबाउट क्लोरीन, atomic number of chlorine is 17. Distribute the electron 2, 8, 7. Now check how many electrons are present in its outermost cell, 7 electron and it is written here. That means अगर किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें पता चले कि लास्ट वाली सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं, दैट मीन्स उसको हम क्या काउंट करेंगे, एज अ नॉन मेटल। ओके, सो आई थिंक दिस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू। So now we will talk about its physical state. If we talk about the physical state of metal, what is the physical state of metals? We know, mostly you know about the iron, magnesium, sodium. Okay, these all are the metals. Moreover, see, mostly जितने भी हमारे पास metals हैं, all metals are solid in state. Okay, so mostly generally metals are solid in state. And if we talk about exception, that is mercury and gallium. मरकरी और गैलियम दोनों ही हमारे किस स्टेट में होते हैं, इन लिक्विड स्टेट। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर इन ऑल 3 states. ओके, इट कैन बी इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट ऑल्सो. सो नॉन मेटल्स कैन बी solid, liquid and gases. If we talk about solid, there are 2 main examples, that is carbon and phosphorus. If we talk about liquid, bromine is liquid and bromine is a non-metal. And if we talk about gas, you might have heard about the word chlorine gas, oxygen gas, nitrogen gas. That means these all are in the form of gaseous state. Okay, so the second point is about the physical state. Metals are generally solid. Exceptions, if we talk about exceptions, that is mercury and gallium both are present in the liquid state. Same thing if we talk about the non-metals. Non-metals can be present in all 3 states, that is solid, liquid and gaseous state. And you can write some example, carbon and phosphorus in the solid state. Liquid, bromine, bromine is a non-metal but it is present in the liquid state. Gas, chlorine gas, oxygen gas and nitrogen gas. Okay. So now we will discuss about the third point. See, metals are luster.
लस्टर मीन टू से शाइनी अपीयरेंस होती है कि अगर हम किसी भी मेटल को हल्का सा भी हम ऊपर से रब कर देते हैं, जो हमारी बॉटम से उसकी सरफेस निकलती है दैट इज शाइनी इन अपीयरेंस। मोर ओवर वो ऑलरेडी अपीयरेंस में शाइनी होता है, बट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू कोरोजन और ड्यू टू नॉट रेंसिडिटी, ड्यू टू कोरोजन कई बार क्या होता है, जंग लगने की वजह से उसकी जो शाइनी अपीयरेंस है वो डल हो जाती है। बट इफ़ वी ट्राई टू रब इट, रब करने के बाद जो हमारी उसकी बॉटम सरफेस निकलेगी दैट विल बी शाइनी, लस्टर इन नेचर। ओके, एक्सेप्ट्स, इफ वी टॉक अबाउट एक्सेप्शंस, lead. Okay, Pb is a symbol for lead. Okay, so lead is the exceptional case in case of metal की जिसकी shiny surface नहीं होती, otherwise generally all metals are luster in appearance. If we talk about non-metals, non-metals are dull in appearance. You can write dull, or if you want to write non-luster you can write non-luster also. And what are the exceptions? There are some exceptional case also, like if we talk about iodine, we know that iodine is a known metal, but even then its surface is shining, its luster surface. Okay, if we talk about diamond and graphite also, see we know that diamond is the allotrope of carbon and carbon is a non-metal, but everybody know that diamond is has a very shiny surface or very lustrous surface. Okay, so it is the exceptional case. If we talk about iodine and diamond, both are the exceptional case of known metals की जिसके अंदर क्या है, dull surface नहीं होती, वो shiny appearance के होते हैं. Okay, so let's discuss about the fourth point. See, metals are hard. कि जितने भी हमारी मेटल्स हैं वो सारे क्या होती हैं, हार्ड होते हैं। वाई दे आर हार्ड, मेटल्स के हार्ड होने के पीछे रीज़न क्या होता है, ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड, मेटल का जो बॉन्ड होता है बीच में, दैट बॉन्ड इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड, एट दैट बॉन्ड इज टू मच स्ट्रॉन्ग एंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑल मेटल्स आर too hard. Okay, but there are some exceptional case also. What are those exceptions? If we talk about mercury, gallium, sodium and potassium, we know that sodium and potassium both are the soft solid. ये hard नहीं होते, both are soft because इनको हम क्या है easily knife से cut कर सकते हैं. Okay, so these are the exceptional. mercury and gallium के बारे में already हम बात कर सकते हैं कि वो liquid state में होते हैं. If they are present in the liquid state, so how we can say that they are hard? So these are the exceptional case. Okay, but if we talk about non-metals, non-metals are soft. Non-metals are soft. And if we talk about the exceptions, diamond, because we know that diamond is known as the more hardest substance. Okay, so here we have discussed total 4 points. सी फर्स्ट, जिसके आउटरमोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आपको मिले, दैट मीन्स वो क्या है, आपकी मेटल है. सेम अगर 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आपको आउटरमोस्ट सेल में मिले, दैट मीन्स दैट इज काउंटेड एज अ नॉन मेटल. इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल स्टेट, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सम एक्सेप्शंस आर देयर, मर्करी एंड गैलियम. इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल, ये तीनों स्टेट में हो सकता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. सॉलिड के केस में क्या है, कार्बन एंड फॉस्फोरस. लिक्विड, ब्रोमीन गैस, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट देयर लस्टरनेस, कि ये शाइनी अपीयरेंस के होते हैं, वो डल अपीयरेंस के होते हैं. जो मेटल्स हैं हमारे, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर बट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर. ओके, वाई इट इज हार्ड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन टू मेटल्स. एंड वाई इट इज सॉफ्ट, due to weak van der Waals force of attraction. Okay, which bond is present between these? Weak van der Waals force. Weak van der Waals force of attraction. Okay, so now we will discuss about the 5th point. See beta, already we have learned about metals and non-metals in our previous classes also.
You might have learned this in your 8th class, but in 8th class you haven't learned about the detail of the metals and non-metals. Only some common points we have discussed in that class, but here we are going to discuss in detail. What is the 5th point? Fifth point is about their melting and boiling point. Okay, see हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा है दैट मेटल्स आर हार्ड भी हैं, सॉलिड भी है. ओके, अगर कोई चीज़ हमारे पास हार्ड है तो वो किस वजह से हार्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से, मेटल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से. तो उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की ज़रूरत है. दैट मीन्स इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? हाई होगा. ओके, सो दैट मीन्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज melting point and boiling point of metals is high. Exceptional except mercury, because mercury is liquid at room temperature, we know that. Okay, you can write the example of gallium also if you want to write. Non-metals, we know that in case of non-metal that is weak van der Waals force of attraction is there. मीन्स जो नॉन मेटल है दोनों के बीच में क्या होता है? जो बॉन्डिंग है हमारी दैट इज वीक बॉन्डिंग. ओके, सो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देने की इसको ज़रूरत नहीं है. उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा. हल्की सी हीट गेन करते ही क्या उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, बिकॉज बॉन्ड क्या है? वीक बॉन्ड है. ओके, सो दैट्स वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड boiling point of non-metals are low, except exceptional केस क्या है इसके केस में? लाइक सिलिकन, बोरोन एंड कार्बन. सिलिकन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. ओके, एंड मोर ऑल्दो इट इज़ द नॉन मेटल. सो ये क्या हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसको हमें लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे. नेक्स्ट इज अबाउट देयर डेंसिटी. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, non-metals have low density. What is density here now? You might have heard about the word density, that is mass per unit volume. Okay, so simply आप इसको याद रख सकते हो कि डेंसिटी क्या है कि हमारे पास एलिमेंट्स के अंदर पार्टिकल्स जितने ज़्यादा क्लोज होंगे वो सब्सटेंस हमारे पास क्या उतना ही ज़्यादा डेंस होगा, उतने ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी. सिंपली टर्म में आपको माइंड में रखना है अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. ओके, इन केस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, दैट मीन्स वो क्या ज़्यादा डेंस है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. लिक्विड केस में क्या है? पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसियस स्टेट. दैट मीन्स लिक्विड के केस में क्या डेंसिटी सॉलिड से थोड़ी सी कम होगी. इफ वी टॉक अबाउट गैसियस स्टेट, पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव. ओके, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है हमारे पार्टिकल का वो बहुत दूर दूर होता है, ज़्यादा होता है. पार्टिकल्स आर फार अवे टू ईच अदर. दैट मीन्स गैसियस स्टेट में क्या है? जो डेंसिटी है वो कम है. ओके, तो डेंसिटी हमारी ऑल अबाउट किसके बारे में है? क्लोजनेस के बारे में. जितने पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होंगे, जितना ज़्यादा वो टाइटली पैक्ड होंगे, दैट मीन्स डेंसिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा है. और हमें पता है कि दैट मेटल्स आर सॉलिड एंड हार्ड सब्सटेंसेस. इन आवर प्रीवियस पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट. सो metals have high density but non-metals have low density, but there are some exceptions. मेटल्स के अंदर क्या है? मेन एक्सेप्शन क्या है? मरकरी लिख सकते हैं हम, गैलियम ऑल्सो, दोनों ही क्या है? लिक्विड स्टेट में है. पोटेशियम और सोडियम भी लिख सकते हैं बिकॉज बोथ आर सॉफ्ट सॉलिड, नॉट द हार्ड सॉलिड. ओके, सी नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, बट इफ वी टॉक अबाउट डायमंड,
We know that diamond is the most hardest substance known as. Okay, so diamond is the exceptional case in case of known metal जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. So now we will write our next point. Next is ductility. Metals are ductile, but non-metals are non-ductile. What is ductility? In which we can stretch or drawn the elements and we can convert that into the thin wire, जिसकी हम stretch करके खींच के पतले पतले तारे बना सकते हैं. That is the ductility. Okay, that means metals are ductile. metal की हम बड़ी easily उनको stretch करके किस में convert कर सकते हैं, thin wires के अंदर. बट नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं है. ओके, बट देर आर सम एक्सेप्शन. एक इसका एक्सेप्शनल केस भी है. एक्सेप्शनल केस क्या है? कार्बन फाइबर्स. कार्बन फाइबर्स जो है इसका, इट इज़ द एक्सेप्शनल केस कि जिसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेम हेयर मेटल्स क्या है हमारी इतनी ज़्यादा डक्टाइल हैं कि सपोज वी हैव 1 ग्राम गोल्ड. अगर हम 1 ग्राम गोल्ड को स्ट्रेच करते हैं तो इतना स्ट्रेच हो जाएगा कि 2 किलोमीटर लॉन्ग हम उससे एक वायर बना सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन इमेजिन दैट हाउ मच मेटल्स कैन बी डक्टाइल, कि हम उनको कितनी पतली तार में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, कि अगर हम 1 ग्राम गोल्ड को स्ट्रेच करते हैं उसकी कितनी पतली तार बन सकती है? 2 किलोमीटर लॉन्ग. सेम थिंग if we talk about the tungsten. जो टंगस्टन होता है हमारे पास, इसकी जो वायर है इतनी लंबी बन सकती है कि वो इनविजिबल, हमें दिखाई ही नहीं देती. बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल नेचर का होता है कि हम उसको स्ट्रेच करते जाएं इतना ज़्यादा वो लॉन्ग हो सकता है कि हम उसको देख भी नहीं पाएंगे. दैट मीन्स वो इनविजिबल की स्ट्रेंथ तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है. दैट मीन्स दैट इज़ मोर डक्टाइल इन नेचर. ओके, so next point is about their malleability. Okay, metals are malleable but non-metals are non-malleable. What is malleable now? Which we can beat with the help of a hammer and we can convert that into the thin sheets. sheets के अंदर इसको हम convert कर सके, जिस पीटने के बाद which can be beaten and which can be converted into the thin sheets, that is known as malleability. okay, that means हमारी जो metals हैं वो malleable होती हैं. like आप देखते हैं एल्यूमिनियम का हम जो foil paper देखते हैं जिसके अंदर हम फूड को रैप करने में जिसका हम यूज़ करते हैं, दैट मीन्स उसको भी क्या है, उसको पीट के आफ्टर बीटन दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट. एक शीट की तरह हमने इसको कन्वर्ट कर लिया. मोर ओवर वो क्या है? दैट इज़ मेटल. ओके, सो देर आर सम एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं? एक्सेप्शन हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मरकरी, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम. ओके, ये क्या है? सॉफ्ट हैं. हल्का सा भी हम उसको अगर बीट करेंगे सोडियम और पोटेशियम का तो वो ब्रेक हो जाएंगे. ओके, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द thin sheets. So what are the exceptional case? Mercury and gallium we already know that present in the liquid state. If we talk about potassium and sodium and potassium, both are soft solid. And one more example, zinc is also there. okay, क्योंकि जिंक के ऊपर भी अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो भी टूट जाता है स्ट्रेच होने से, थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा. ओके, सो सी फिफ्थ पॉइंट अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स का हाई होता है, नॉन मेटल्स का लो होता है. नेक्स्ट अबाउट डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी. अबाउट नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट देयर डक्टिलिटी. मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. सेम मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर बट नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल. ओके, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट. Next point is about their brittleness.
metals are non-brittle. What is brittle? Brittle mean to say if we have to apply some force on any object or any substance, if it is broken, if it is break due to applying force, that means that is the brittleness. Suppose I have this chalk, if I will apply some force on it, टूट गया, इट इज़ ब्रोकन, दैट मीन्स इट इज़ द ब्रिटलनेस. बट मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, उनको क्या हम इजीली ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते. दैट मीन्स मेटल्स आर नॉन ब्रिटल बट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर. एक्सेप्शन इज same zinc, sodium, potassium, mercury, gallium, all we can write because we know mercury and gallium is liquid, brittleness का उसके अंदर कोई चक्कर ही नहीं है. If we talk about potassium and that sodium, we know कि हम इसको easily knife से कट कर सकते हैं. That means वो भी brittleness की property को शो नहीं करता, शो करता है. Zinc is also कि zinc के ऊपर भी अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो easily ब्रेक हो जाता है. ओके See, they are brittle in nature, but there are some exception also. Okay, one is if we talk about graphite and moreover all gases also. जो हमारे पास क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ओके, they all are also included in this. Liquid also. Next is metals are good conductor of heat and electricity. Heat and electricity. Heat और electricity क्या है, good conductor होता है. We know that silver is a very good conductor. Okay, we talk about gold and silver, both are very good conductor, but mostly we use copper. कि mostly हम copper का use करते हैं, क्यों? Because gold and silver is more expensive. Okay. But non-metals are bad conductor of heat and electricity. See, if we talk about the exceptional case of metals and non-metals, see, in case of metal, exceptional case is टंगस्टन वायर, कि हमारे बल्ब के अंदर जो वायर लगी होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर नहीं होती है, तो इट इज़ द एक्सेप्शनल केस. मोर ओवर टंगस्टन इज अ मेटल. इन दिस केस ऑल्सो व्हाट आर द एक्सेप्शनल केस? कार्बन फाइबर एंड ग्रेफाइट. वी नो दैट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, जबकि किससे मिलकर बना हुआ है, किसका एलोट्रोप है, इट इज़ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन से बना हुआ है, बट फिर भी क्या है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. हमें पता है कि कार्बन इज अ नॉन मेटल, ये क्या होना चाहिए था, बैड कंडक्टर होना चाहिए था, बट ऑल दो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर. ओके, सो इट इज़ द एक्सेप्शनल केस इन दिस. नेक्स्ट पॉइंट इज about the type of ions. See, we have two type of ions, that is anion and cation. Okay, so in 9th class also we have learned about this, that what are anion and what are cation and how they are formed. वो बनते कैसे हैं, anion कब फॉर्मेट होता है और cation कब फॉर्मेट होता है. ओके, सी टाइप ऑफ आयन क्या है, यहाँ पर मेटल कौन से टाइप का आयन बनाता है, कटायन. कटायन मीन टू से पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है. और कटायन बनता कब है, जब कोई हमारे पास एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है या जिसकी इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने की टेंडेंसी हो, दैट इज कटायन. जब पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाए, दैट आयन इज द कटायन. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल. सपोज वी हैव सोडियम, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, 2, 8 एंड 1. डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम उसका करते हैं तो सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए क्या है, या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिले या फिर बेटर है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन के लॉस कर दे.
So it's very difficult to gain 7 more electron because it require more amount of heat energy which can make our element or metal unstable. ओके तो हम क्या करेंगे, ये बेटर है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे. ओके जैसे ही अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, सोडियम के ऊपर क्या होगा, Na पॉजिटिव चार्ज. जितने भी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आपको दिखा देना है. एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो 1 पॉजिटिव चार्ज. और अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 10 ओनली, बिकॉज 2 and 8 10 जो एक इसके पास एक्स्ट्रा था वो इसने किसी को डोनेट कर दिया है. ओके सो सोडियम के ऊपर अब किसका फॉर्मेशन है, पॉजिटिव चार्ज का. इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कटायन. एंड मोर ओवर वी कैन से इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हम इसको बोल सकते हैं, कटायन को ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोल सकते हैं. दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ओके इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, इसके अंदर टाइप ऑफ आयन क्या होता है, अनायन. अनायन मीन टू से नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है. और नेगेटिव चार्ज कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए. ओके सो लेट्स राइट सम एग्जांपल. सपोज आई हैव रिटन ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या बनेगा, 2 and 6. अब 6 को क्या है, अपना ऑक्टेट बनाने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा और गेन करने के बाद क्या बन जाएगा, 2 and 8. और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, 2 नेगेटिव. तो ये किसका फॉर्मेशन हुआ है, नेगेटिव चार्ज का. इस नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, अनायन. एंड वी कैन से इट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑल्सो. दैट मीन्स नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. मेटल्स क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, कटायन हम बोल सकते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हम बोल सकते हैं. एंड वी कैन से अनायन फॉर्मेशन. अनायन कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. कटायन कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देता है. ओके सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Our 12 points are, it is for metals and non-metals. See, if we talk about the nature of oxides, okay, we know that metal when react with oxygen it gives the formation of metallic oxide, and when non-metal react with oxygen it gives the formation of non-metallic oxide. Okay, so here we need to know what is the nature of metallic oxide and non-metallic oxide. Okay, what is the nature of oxide? Generally metal oxides behave like the basic, their nature is basic. And if we talk about non-metals, nature of metallic oxide is acidic. But there are some exceptional case also. See, some metals behave, metallic oxide behaves like the basic, means their nature of metallic oxide is basic in nature. And if we talk about the nature of non-metallic oxide, their nature is acidic. Okay, see, in case of metallic oxide, some metals are there which behaves like acids and bases both, and that type and that process is known as the amphoteric. Okay, what is amphoteric? Which behave like acids and bases both. Suppose we have 3 example: aluminium, zinc and lead. When aluminium react with oxygen it gives the formation of aluminium oxide. When zinc react with oxygen it gives the formation of zinc oxide. And lead oxide. Means these all 3 metals behaves like the amphoteric nature, means they are not acidic, not basic. They can behave like acidic and basic both. Okay, same in case of non-metallic. See, we know that the nature of non-metallic oxides are acidic. Okay, but still there are some exceptional case, like some are neutral also. If we talk about H2O, CO, N2O,
NO, etc. Means these are the exceptional case because these are neutral in nature. Their nature is not acidic like the non-metallic oxide. Okay, so it is the end of our today's lecture. We have discussed about 12 main difference between the metals and non-metals. In tomorrow's lecture we will discuss about the chemical properties of metals. Okay, till then thank you and have a nice day.